So risk planning. In the last lecture, we had seen what is risk and how to analyze the risk, how to handle with it. That also we saw. Now we'll be seeing how to plan the risk. That means you cannot say that there cannot be any risk ever. Risk might come, or it is a part of a life, or it is a part of the work also, where you have to take the risk. But that doesn't mean you can always avoid the risk. Sometimes you have to face the risk, but while facing, how you can handle it, how you can face it, or how you can deal with it. So we can deal the risk in 5 steps. That is acceptance. What a risk is coming, let me accept it, I will take it. Risk avoidance. Last time I had taken this risk and I had given a very heavy amount for that, which I don't want to do it, so I will avoid it. Risk reduction. That means I don't want to take a major risk, but minor risk I can take it and I can handle it. Risk transfer. That means if the major risk is coming, I will handle it in such a way that it will be getting transferred into the smaller one. That means minimal loss. That is risk transfer. And risk mitigation or contingency measures. That means how it can be handled within the team, or how the team can measure it, or how can we solve it. That is nothing but a risk mitigation or contingency measures. Now, acceptance. What do you mean by what acceptance? That means acceptance means सर किसी चीज को एक्सेप्ट करना, लाइक उसके एग्जिस्टेंस को या ऐसा कुछ. that means taking it as it is. Taking it as it is मतलब जैसे है वैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. तो when will you accept it? Can anyone? When will you accept the risk? When it is minimal. When it is minimal, okay. When it is minimal, only minimal. सर नेक्स्ट टाइम मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसा कुछ ऊपर नीचे करके. एडजस्ट कर सकते हैं, ओके. चलो भाई वो भी मान लेते हैं. यस. When we can accept the risk? When it's sure to occur. When it's sure to occur, okay. Even that is also correct. When it is sure to occur, okay. Yes, apart from this, anyone? I don't want to repeat it again in every lecture. Please kindly make sure that. सर आया तो कैसे भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. आया तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मतलब एग्जाम्पल रिस्क मेरे को आया, समझो एरर आया कोई भी, तो मेरे को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट में, और उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा. उसमें कुछ बोलते ना. ओके. अभी कुछ कर भी नहीं सकते अभी. ओके. नेक्स्ट. Those are not replying. Sir, rainy season. Rainy season. Wow, it is raining now. Morning I thought it is a clear sunny day, but now it is raining now. So what is the difference in that? सर जैसे अभी ड्राइव कर रहे हो और सामने खड्डा हो, बट सर वो रोड ही फुल खड्डे से भरा हो, बट वी हैव, हम लोग को पता है कि वो खड्डे का गहराई तो पता नहीं है, बट इतना पता है क्रॉस भी हो सकता है, क्रॉस करना ही पड़ेगा वरना गिर भी सकते हो उसमें, बट फिर भी करते हैं ना सर. मतलब तू ये कहना चाहता है कि गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं है. हाँ सर. ओके. यस अफसाना महकर, यू आर सेइंग समथिंग. यस सर, व्हेन इट इज इजी टू यूज. क्या बेटा? तो जब से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसको यूज करना अच्छे से हो जाएगा ना. पूछ रही कि बता रही है? तो बता रही हूँ, जब से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसको अच्छे से यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं. अच्छा एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके. यस गौरव यादव जी.
क्या हुआ? There are many people over here. 42 participants, and only 5 to 6 are replying. Should I do the needful every time which I do? Okay, I don't mind doing it. हेलो सर। सर अनअवॉइडेबल। क्या हुआ? सर क्या हुआ? कोरोना में वाइन शॉप वाइन की लाइन लगानी अच्छा ये रिस्क हो सकता है। अच्छा लगा लगाया। क्या बोल रहे हैं? कोरोना में वाइन के लिए रिस्क लाइन लगाना लेने के लिए और रिस्क हो सकता है। अच्छा लाइन लगाना? वाइन शॉप में वो लाइन लगाते ना अभी लोग लगाते रिस्क लेके अच्छा। दारू करने के लिए। समझा। यस सर। घंटा खड़ा था? तू कितना घंटा खड़ा था? मैं नहीं था सर। अरे यार, वो लोग भी कैसे होता है ना कि इंसान वही बोलता है जो एक्सपीरियंस करता है। सबसे झूठ पहला बोल रहा, मैं देखा था। सबसे पहला एग्जांपल वही आता है। एक्सपीरियंस क्या रहेगा? अब कोरोना काल में बहुत से रिस्क थे, लेकिन तूने वाइन का ही बोला क्योंकि तू खड़ा रहा होगा वहां पे, बराबर? नहीं सर नहीं था मैं। टाइपिंग कर रहा है। ठीक है चलेगा। तेरा फोटो भी आया था बेटा पेपर में, समझा? रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए वो सर मेरे को भी भेज देना। सर मेरे को भी भेज देना। वायरल हुआ था तू। हाँ सर मेरे को भेज देना देखा नहीं। वो 1800 वाली आंटी भी इतनी कम वायरल नहीं थी जितना तू वायरल था। हाँ सर। होपफुली याद है सबको 1800 वाली आंटी। Anyways, anyone else? Raut Sneha, you are saying something. हाँ सर, unavoidable sir. Like in some cases, except that we have time. Okay, unavoidable. Someone else was saying. और भी कोई बोल रहा था? हाँ गायत्री बेटा बोलो। लेक्चर सोना। लेक्चर सुनना? सोना सर। सोना? अगर सो गए और लेक्चर में नाम लिया तो वो रिस्की है ना सर? अच्छा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा फिर? सोने का नहीं सर। तो रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना फिर उसको। अगर सो लिए, नाम लिया और सो रहे थे और निकाल दिया तो फिर तो रिस्क एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। ओके, बच्चे लोग बहुत लाइव एग्जांपल दे रहे हैं। कोरोना हाँ काल। सर। हाँ प्रभात मिश्रा जी, आज कुछ लिखे नहीं आज? हाँ सर, वही बोल रहा था कि लेक्चर में टेक्स्ट करना सर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हाँ, तो अभी लेक्चर में टेक्स्ट तो करना है, लेकिन क्या टेक्स्ट करना है वो नहीं समझता है कभी कभी किसी को, तो वो रिस्क ले लेते हैं, बाद में फिर नतीजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलेगा। रिस्क एक्सेप्टेंस, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए पीपीटी में, रिस्क एक्सेप्टेंस तब होगा जब बाकी के 4 पॉसिबल नहीं है। मेरे को बाकी के 4 पॉसिबल नहीं है तो मुझे रिस्क एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीजो ने बोला, सीजो ने क्या एग्जाम्पल दिया था रिस्क का, कोई बता सकता है उसके अलावा? रास्ते में खड्डा। क्या हुआ? यस ऋतिक, क्या बोला? रास्ते में खड्डे रहेंगे और गाड़ी ये करने का वो था। उल्टा बोल रहा है तू। रास्ते में खड्डा नहीं रहता। देखा है कभी रास्ते में खड्डा नहीं? खड्डे में रास्ता रहता है, बराबर। कार्तिक ने बोला अभी इस पे मीम बना के शेयर करेगा, देखो अभी वो, और उसको मैं रिप्लाई करेगा, देखा अभी बस। ओके, नाउ आई एम गोइंग थ्रू द रोड, सपोज फ्रॉम कॉलेज टू कांजुरमार्ग, ओके, एंड जो डीमार्ट के यहाँ पे रोड है, सपोज डीमार्ट के यहाँ पे रोड है, वहां पर इतने पॉट होल्स हैं कि पैर से भी सीधे चल नहीं सकते वहां पे,
तो गाड़ी लेके चलना तो दूसरी बात है, तो वो रिस्क है मेरे लिए, है रिस्क। एग्रीड? यस सर। वहां से जाना रिस्क, वहां से जाना रिस्की है। तो सेकेंड स्टेप जो है, क्या है सेकेंड स्टेप इसके अंदर? अवॉइडेंस। एक्सेप्ट कर। अरे सेकेंड पॉइंट, रिस्क अवॉइडेंस। कैन यू अवॉइड can you that risk, avoid that risk? Can you avoid that risk? जो डिमांड के यहाँ पे गड्ढे हैं, how do you avoid that risk? How can you avoid that then? रास्ता चेंज I will be going from the opposite side. जो अपने कॉलेज से राइट नहीं लूंगा, मैं लेफ्ट लूंगा, फिर वहां से निकल जाऊंगा मैं सर्विस रूट जो है सुवर्ण टेम्पल के यहाँ पे है, या तो फिर गैलेरिया से निकालूंगा गाड़ी में। निकाल सकते हैं? हाँ। तो मैंने उसको क्या किया? अवॉइड किया। थर्ड स्टेप, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। मैं जो गैलरी वाला रोड है, अब वो डीमार्ट का रोड अगर गड्ढे से भरा हुआ है तो गैलरी वाला तो अच्छा नहीं रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं तो गड्ढे रहेंगे, अनइवन सरफेस रहेगा ही। लेकिन वहां पे उतना रिस्क नहीं है जितना डीमार्ट के यहाँ का है, तो मेरा वहां पे रिस्क क्या हो गया? रिस्क रिड्यूस हो गया। समझ में आया? रिस्क रिडक्शन। रिस्क ट्रांसफर, मैं क्या करूंगा? मैं किसी और को बोलूंगा भाई काम कर, तो ये मेरा गाड़ी ले और मुझे पवई प्लाजा के यहाँ मिल, मैं तुझे वहां पे आता हूँ, वहां पे मिलता मैं तेरे को दूसरे रोड से। That means what I have done, the risk which was on my way, I have transferred to someone else. समझ में आया? सर एक और एग्जांपल दो। यस सर। अरे एक और एग्जांपल? अरे ये एग्जांपल में चारों आ जाएंगे बेटा। ठीक है चलेगा, फिर भी एक वक्त एग्जांपल अगर चाहिए तो फिर एक मिनट सोचना पड़ेगा अभी, जहां पे ये चारों अगर फिट होता है वो। सर पुलिस वाले पकड़ते हैं ना बिना हेलमेट के। हाँ बराबर बराबर, वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे लेकिन? कैसे अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को? हेलमेट पहन लो, रिस्क नहीं है। रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम लोग हेलमेट नहीं, नारियल का कपड़ा पहन लेंगे या कुछ और पहन लेंगे। That means I will be using not the proper helmet, but I will be using something else which is similar to that helmet. जैसे अभी अगर हेलमेट पहनते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि फुल हेलमेट पहनना चाहिए, which is covering your complete head. But I have seen many people who are just using a cap like helmet. अगर देखा रहेगा तुमने कभी 3 Idiots वाला, देखा हेलमेट? यस सर। यस सर। तो उससे रिस्क अवॉइड तो नहीं होगा, उससे रिस्क अवॉइड तो नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस तो होगा। रिस्क ट्रांसफर, ठीक है रिस्क था, मैंने किसी और को बोल दिया हेलमेट पहन लेकर के, नहीं पहना था, जो भी हो व्हाटएवर इट इज। एंड रिस्क मिटिगेशन ऑन कंटिजेंसी मेजर्स, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब हम लोग बोलते हैं कि रात को 9 बजे निकला मैं बाइक पे, अरे नहीं यार छोड़, ये टाइम पे कौन पुलिस वाला रहता नहीं है, निकलते हम लोग ऐसे विदाउट हेलमेट, गाड़ी का पेपर नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं भी सीख ही रहा हूँ गाड़ी, और मैं निकल गया। फिर जैसे मैं आगे बाहर आया मेन रोड पे, वहां पर नाकाबंदी था, चेकिंग था पुलिस का, तो पुलिस वाले ने साइड में बुला लिया, हेलमेट नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। सो दैट रिस्क आई नीड टू आइडेंटिफाई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दैट इज मिटिगेशन और कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब वही होता है कि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हालात कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है वो। दैट इज नथिंग बट जिसको बोलते हैं ना आकस्मिक, आकस्मिक जो बोलते हैं,
It means that over here depends on the case to case, depends on circumstances, depends on state of affairs or whatever it is. That means जो situation उस वक्त उसके ऊपर तुम लोग कैसे हैंडल करते हो वैसे तुमको यहाँ पर करना पड़ेगा. So acceptance, you have to accept it. अगर तुम्हारे पास कोई रोड नहीं है जाने के लिए, कानपुर जाने के लिए, उसके अलावा तो तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, धीरे चलना ही पड़ेगा. अवॉइड कर नहीं सकते तुम उसको, क्योंकि वो एक ही रोड है जहाँ पे तुमको लेके जाता है. So that is nothing but your acceptance, avoidance, reduction, transfer and mitigation. Can you go to next slide? Detail में दिया है आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Risk reduction, leverage. Leverage मतलब क्या? Can anyone tell me? तो जैसे पैसे पे लेवरेज ले सकते हैं हम लोग. 1000 रुपए का माल रहेगा तो 100 रुपए दे के 1000 का उठा सकते हैं. Okay. Anyone else? मार्जिन जैसा. Anyone else? Leverage means which side is more favorable, na? Like. Yes. That means we can say that कि profitable kind of thing. मतलब रिस्क रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट होगा. मतलब रिस्क तो लेना ही है. देखो अगर लेटेस्ट न्यूज अगर तुमने सुना रहेगा कल का, जहां पर रिस्क लिया, सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन उसको पता नहीं चला कि कैसे कंटिन्यू करना है और अल्टीमेटली उसको बोलते हैं ना छोड़ना पड़ा. कौन सा न्यूज है ये? बिजनेस में लेटेस्ट न्यूज है ये. रिस्क लिया, स्टार्ट किया, अच्छे से चलाया भी, लेकिन इसको मेंटेन नहीं रख पाया तो उसको बेचना पड़ा. बिग बाजार. हाँ, फ्यूचर ग्रुप सर. कौन 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 कौन? फ्यूचर ग्रुप. फ्यूचर ग्रुप कौन ही है? सर वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ फाउंडर का. उसने अभी रिलायंस को बेचा. कितने में बेचा? 24,000 कुछ करोड़ में. 24,000 कुछ करोड़ में. उसके ऊपर कितना था फिगर? आई वांट एग्जैक्ट फिगर. सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है. याद रखो, न्यूज में पढ़ा करो जा रही है. यस, अपार्ट फ्रॉम हिम एनीवन? Anyone apart from him? What do you know about the news of Future Group? No. No, sir. No. बियानी करके था, मुकेश बियानी या कोई तो था. नहीं, मुकेश बियानी कुछ और था. बियानी सर ने इतना पता है मेरे को. He was the founder of Big Bazaar, Food Bazaar, और तुम्हारा कौन सा है वो? Hyper City. नहीं, होम का था ना वो. होम सेंटर, बिग बाजार, फूड बाजार, होम सेंटर, और तुम्हारा जो सेल में देता था ना प्रोडक्ट, हो जो मीरा रोड पे है हाईवे पे, ब्रांड फैक्ट्री और एक और तुम लोग कौन सा बोल रहे थे? हाइपर सिटी सर. हाइपर सिटी. हाँ, तो ये पांचों का मालिक था वो बियानी. बट उसने क्या किया? रिस्क लेके स्टार्ट किया. चलो भाई, पहले उसने बिग बाजार स्टार्ट किया. सब अच्छे से एक्सेप्ट चलने लग गया. वो डीमार्ट के कंपटीशन में था वो बिग बाजार, लेकिन फिर बाद में उसने बोला कि बिग बाजार से नहीं हो रहा है तो चलो हम लोग उसको कुछ और नाम से स्टार्ट करते हैं. तो उसने और एक नाम से स्टार्ट कर दिया, फूड बाजार में सब खाने पीने मिलने लग गया, सब मिल गया. फिर बाद में उसने स्टार्ट किया ब्रांड फैक्ट्री से सब वहाँ पे कपड़े वपड़े सब वहाँ पे होलसेल में बेचने लग गया, शूज वगैरह सब बेचने लग गया वो सब, और ब्रांडेड शूज एंड एवरीथिंग. इसने फिर बोला कि अभी मैं फर्नीचर में घुसता हूँ, तो उसने होम सेंटर चालू कर दिया. So he took the risk. He started properly and everything. But what he could not do over here? Maintain. Why he need to sell it to Mukesh Ambani Group, Reliance Industries Group? Because he couldn't analyze the risk, or you can say that he could not accept that risk. रिस्क एक्सेप्ट करके स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन बाद में जो रिस्क आने वाले थे
वो उसको हैंडल नहीं कर पाया एंड अल्टीमेटली ही बिकेम सो मच डेप्टेड इन द मार्केट दैट ही हैज टू लिटरली सेल हिज बिजनेस और लिटरली सेल हिज बिजनेस टू कम आउट ऑफ द डेप्ट. Had he been accepted that and he would have been रिस्क लेने पे भी देखो कभी कभी जरूर नहीं कि लॉस भी होता है, लॉस ही होता है, बहुत से लोगों को फायदा भी होता है. जैसे मुकेश अंबानी ने रिस्क लिया. क्या रिस्क लिया? जियो का सर्विस सेंटर, जियो का सर्विस खोलने का टेलीकॉम सेक्टर में रिस्क लिया. स्टार्टिंग में उसको लॉस हुआ रहेगा क्योंकि 3 महीना फुकट दे दिया बिना इनकम के, पब्लिक को ललचाया. नेक्स्ट 3 महीना और फुकट दे दिया और फुकट दे दिया और फुकट दे दिया. 4 बार ऐसे फुकट दे दिया उसने. यहाँ पे 4 बार फुकट दे देने के 1 साल उसने फुकट दे दिया. बट उसको पता था कि इसका जो रिडक्शन लेवरेज जो रहेगा वो मुझे बहुत प्रॉफिट देगा आगे. मतलब अगर मैं ये रिस्क लेता हूं और पब्लिक को अपनी तरफ खींचता हूं, पहले तो 200 रुपए देना पड़ता था पब्लिक को 1 GB के लिए 1 महीने के लिए, लेकिन अब मैं उनको बोलता हूं कि तुम लोग 399 रुपए दे दो 84 डेज के लिए 1.5 GB पर डे. तो इमेजिन 1.5 GB पर डे मतलब 1 महीने का 45 GB और 399 डिवाइड बाय 3 133 रुपीज में मुझे 45 GB मिल रहा है. 42 GB इनफैक्ट 28 डेज रहेगा तो 42 GB मिल रहा है 133 रुपीज में. तो एवरीवन विल कम टू दैट. अगर तुम लोग खुद ने एक्सपीरियंस किया रहेगा. बहुत से लोगों ने पोर्ट किया, बहुत से लोगों ने नया नंबर ले लिया, सब जियो 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 चलने लग गए. जितना राशन की लाइन रहता उतना सिम कार्ड के लिए लाइन लगने लग गया वहां पे पब्लिक का, उनके ऑफिशियल आउटलेट में देखा जाए तो उसने क्या किया था, उसने देखा था कि अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका लेवरेज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा रहेगा. दैट मीन्स अगर मैं उसको रिस्क एनालाइज किया मैंने और उसको मैंने समझ के लिया, तो पहले जितना मेरा रिस्क था ना लॉस, उससे डबल मेरे को फायदा होगा. एंड नाउ आई थिंक दुनिया का ऐसा कोई भी जायंट कंपनी नहीं रहेगा जिसने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया रहेगा. जियो के प्लेटफॉर्म में जितना उसने लॉस किया था ना उसका कई गुना ज्यादा, यू कैन से 1500 20 टाइम्स और 1000 टाइम्स वॉट एवर है, उसने प्रॉफिट कमा लिया है और अभी और कमाएगा भी वो. सो व्हाट दे डू ओवर हियर, रिस्क रिडक्शन लेवरेज के अंदर फॉर्मूला क्या दिया उसके अंदर, सिंपल फॉर्मूला है कि बिफोर और आफ्टर का माइनस कर दो और तुम्हारा कितना कॉस्ट आया था वो डिडक्ट कर लो. तो RE बिफोर मतलब क्या है, रिस्क एक्सपोजर बिफोर रिस्क रिडक्शन. मतलब रिस्क लेने के पहले जो था मेरा उसमें क्या था 1% चांस ऑफ फायर कॉजिंग इतना डैमेज, और ये आफ्टर में क्या है रिडक्शन. एग्जांपल फायर अलार्मिंग कॉस्टिंग $1.500 reduces probability of fire damage to the 0.5%. मतलब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया उन्होंने कि आग लगने की वजह से 1% चांस है 200 के मतलब 20 लाख. इनफैक्ट आई थिंक वही होता ना 200 के मतलब 20 लाख की होता ना. इट इज 20 लाख 2 lakhs 2 lakhs क्या ओके. तो 2 लाख पाउंड का डैमेज होगा. ये मेरा पहले का एक्सपोजर के पहले का चांस था. ये आग लगी तो मुझे $2 लाख का रिस्क होगा. ये मेरे को पहले एक्सपोजर के पहले का मेरा रिडक्शन था, ये था चांस था. लेकिन मैंने वहां पे फायर अलार्म लगा दिया. तो फायर अलार्म क्या करता है, जब भी ऐसा स्मोक मिल गया उसको डिटेक्ट करता है, बाद में फिर वहां पे अलार्म बजाता है. तो $500 का फायर अलार्म लगा दूंगा तो मेरा रिस्क प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% से 0.5% पे आ जाएगा. समझ में आया? Yes sir. क्या? अब जो मेरा लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, बिफोर क्या था 1% ऑफ 200 माइनस 0.5% ऑफ 200 और कॉस्ट ऑफ रिडक्शन. कितना रिडक्शन होता था वहां पे 500 रुपीज का मैंने वहां पे इंस्टॉल किया ना डिवाइस. तो 1% ऑफ 2 लाख मतलब कितना हो गया 1% ऑफ 2 लाख मतलब कितना हो गया 2 लाख का 1% कितना होता है 2000 pounds 2000 ओके. और 0.5% मतलब
1,000 pounds. 1,000 pounds. So 2,000 minus 1,000, how much? 1,000. Divide by 500. 500. भाई divide by 1,000, 500. 2. कितना आया? 1,000 divided by 500. 2. That means my reduction leverage is greater than 1. अगर 1 रहता था तो मेरा ना प्रॉफिट ना लॉस उतना ही होता था, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे रिस्क जो है वो कम ही हो रहा है. सो दैट इज वर्थ डूइंग दैट. मतलब 500 रुपए का फायर अलार्म इंस्टॉल करना मेरे लिए बेहद काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेरा वो जो रिस्क है 0.5% से रिड्यूस कर रहा है. वो समझ में आया? Everyone got this concept, risk reduction leverage. Yes sir. मतलब रिस्क किया मैंने तो उसका फायदा कैसे कैलकुलेट करने का, वो दैट इज रिस्क एक्सपोजर के पहले का कैलकुलेशन करो कितना आता है, और रिस्क एक्सपोज होने के लिए क्या इंस्टॉल किया, क्या स्टेप लिया मैंने, उसके बाद कितना कॉस्ट आया वो आइडेंटिफाई करो, और ये रिस्क को एक्सपोज होने से बचाने के लिए जो मैंने खर्चा किया उससे डिवाइड करो. तो 1% ऑफ 2 लाख 2,000, 0.5% ऑफ 2 लाख आफ्टर स्पेंडिंग 500. तो मतलब 1,000 2,000 था पहले, बाद में माइनस 1,000 हो गया, दैट इज कम्स आउट टू बी 1,000 डिवाइड बाय 500, तो दैट इज 2. अगर यहाँ पे भी 500 ही आता, डिवाइड बाय 500 आता, 1 आ जाता, तो इट इज नो लॉस नो प्रॉफिट. चलेगा, इंस्टॉल करूंगा तभी चलेगा, नहीं करेगा तभी चलेगा. लेकिन यहाँ पर मेरा 2 आ रहा है वैल्यू, दैट इज इट इज मोर देन 1. So that is why it is said it is worth installing or it is worth using it. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this is the probability chart of this percentage of completion and against the days. So as the number of days goes on increasing, your probability also goes on increasing. दिख रहा है? Is it visible everyone? Yes sir. यहाँ पे अगर देखोगे नंबर ऑफ डेज इज इंक्रीजिंग, जैसे ये इंक्रीज होते जा रहा है वैसे मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होते जा रही है. समझ में आ रहा है क्या? स्टार्टिंग में मेरा दोनों सेम लेवल पे था, फिर बाद में मेरा ये एक्सपेक्टेड, ये देखो प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन एंड एक्यूमुलेटेड, मतलब स्टार्टिंग में मेरा 10% और ये भी 10%, यहाँ पे मेरा हो गया ये 15%, 10 और 15 कितना हुआ 25, तो ऑब्वियसली ये मेरा 25 होगा. मींस लाइक दैट एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले का भी काम सेकंड में जोड़ दो, सेकंड का काम थर्ड में जोड़ दो, थर्ड का काम फोर्थ में जोड़ दो, लेकिन ये जो परसेंटेज कंप्लीशन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन, वो उसका वो डेज का है. फोर्थ डे को मैं बोला कि 10% कंप्लीट होगा, हो गया 10% कंप्लीट, यस, और मेरा एक्चुअली एक्यूमुलेटेड कितना हो गया 10%. फिर बाद में फिफ्थ डे पे मैंने बोला कि फिफ्थ डे का 10% होगा, लेकिन टोटल फोर्थ और फिफ्थ का मिला कितना हो गया 20% हो गया. फिर सिक्स्थ डे पे मैंने बोला 20% होगा, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ डे का मिला के 40% के आसपास हो गया. दिख रहा है क्या वो ग्राफ में? Yes sir. Yes sir. IITB, if not interested, then kindly let me know. I will end this lecture now, right now. Or else, if you're not getting, kindly ask. If not interested, then let me know. Even I do have other works. I will be happy doing that rather than wasting it over here. Only 1 or 2 people are replying yes sir. Rest all sitting idle for attendance. If it is that scenario, then let me know. I will stop right now. Not interested, then let me know.
or else I will complete the syllabus and I will stop then. Anyways, I'll move ahead. I don't need to ask anyone now. Using PERT to evaluate the effects of uncertainty. That is most likely optimistic time and pessimistic time. So expected time equal to A plus 4m plus B upon 6. That is the expected time calculation formula. How it came, that you need not to know. You just need to know that this is the formula. And what will be the deviation of that? B minus A upon 6. Next, what will be the time of expected and deviation? Calculate everyone and let me know. I am giving you 1 minute का time. It is very easy to calculate. Formula था पहले दिया था वहाँ पे, तो वो देखो और बताओ क्या आएगा फिर. Yes, what is the time expected for A? What is the time expected for A? So can I switch to the formula? 12.33. Yes, Govind, what do you say? 12.33 approximately. 33. Okay, and deviation? The deviation, 1. 1. Yes. For B? How much is for B? 1.33. नहीं. No. 50.33 na? 10.33. 10.33. And deviation? 1.33. नहीं. 1 again. 1 पूरा है. It is 1 6 again. plus 6. 1. Yes. And what about C then? 25.67. I written it already. 3, sir. For S. Clear everyone? Yes. Yes, sir. Formula is A plus B plus 4m. वहाँ पे वैसा लिखा हुआ है A plus 4m plus B. But to make it simpler, A plus B. पहले A plus B को add करो. 10 plus 16, 26. 26 plus 48. That comes out to be 74. 74 divided by 6. That comes out to be 12.33. And S का formula था तुम्हारा B minus A upon 6. 16 minus 10, 6. 6 by 6, 1. 8 plus 14, 22. 22 plus 40 is 62. 62 divided by 6, 10.33. 40 minus 8, 6. 6 upon 6, 1. Then 20 plus 38, 58. 58 plus 96 comes out to be 154. 154 divided by 6, that comes out to be 25.66. 38 minus 20, 18. Divided by 6, 3. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir.
समझ में आया? व्हाट विल आंसर? 12.66, 10.33, 25.66, तीनों का ऐड किया मैंने, 48.65 आ गया। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा a प्लस b प्लस c के लिए? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 का स्क्वायर रूट 3.32, that is the answer of my deviation. Clear everyone with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assessing the likelihood of meeting of target, मतलब मेरा टारगेट कब पूरा होगा ये मैं चेक कर लेता हूँ। Say the target for completing a plus b plus c was 52 days. Calculate the z value thus, that is t minus time estimated upon s. So 52 minus 48.33 divided by deviation 3.32, that is 1.01. Now what is the value for table of z values in 1.01? दिख रहा है कहीं पे 1.01? मतलब 1.01 मतलब क्या हुआ? That is approximate 1 only. Yes. दिख रहा है क्या? 1.01 मतलब approximate 1. तो approximate 1 के अगेंस्ट में कितना डेज दिया हुआ है? टारगेट डेट नॉट मीटिंग का दिया उन्होंने यहाँ पे, तो इट इज नियर अराउंड 18 और 19 है वो। Yes, sir, 18 around. Yes. If you check over here, ये दिख रहा है 1 का वैल्यू, ये 1 के अगेंस्ट में ये दिस इज समवेयर अराउंड 18, तो 18 डेज हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि डिले होगा। 18% चांसेस है कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब अगर मैं 100 दिन मान के चलूं तो मेरे को कंप्लीट करने के लिए और 118 दिन लग सकते हैं, दैट इज 18% नॉट मीटिंग टारगेट डेट। तो जितना मेरा ये z का वैल्यू कम ज्यादा रहेगा उतना मेरे लिए टारगेट डेट पे कंप्लीट होगा। मतलब z का वैल्यू ज्यादा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? z का वैल्यू ज्यादा आने के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि मेरा टाइम एस्टिमेटेड जो है वो कम आए और एक्सपेक्टेड डेट ज्यादा आ जाएगा, तो उससे मेरा डिविएशन भी वैल्यू रहेगा और उसके हिसाब से मेरा यहाँ पर वैल्यू जो है 3.25 के आसपास आएगा। अगर मेरा 2.75 से 3.25 के बीच में आता है तो मेरा कंप्लीशन जो है ऑलमोस्ट ऑन टाइम रहेगा। Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next is Yes, Monte sir. Carlo simulation. It is an alternative to the PERT chart. Read. This is just a general information about Monte Carlo simulation. Clear everyone? Yes, What sir. are the steps? Done, sir. What are the steps of Monte Carlo Yes. simulation? Read. Yes, sir.
Done, sir. Everyone? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Critical chain concept. Traditional planning approach. First, hardware selection, software configuration, install hardware, data migration, draft procedures, recruit staff, user training, install and test. देखा था कहीं पे ऐसा कुछ? ऐसा कहीं देखा था डायग्राम? Yes, sir. इफ यू रिमेम्बर तो वहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे हमने देखा था कि हार्डवेयर सिलेक्शन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पैरेलली स्टार्ट होगा, लेकिन इंस्टॉलेशन तुम्हारा सिलेक्शन के बाद ही होगा। ऑब्वियसली तुम लोग को जो हार्डवेयर चाहिए वो सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद ही इंस्टॉल कर पाओगे। तो सिलेक्शन के लिए अगर मुझे 6 वीक लग गया तो इंस्टॉलेशन के लिए मुझे नेक्स्ट 3 वीक लगेगा ही। लेकिन अगर हार्डवेयर सिलेक्ट करा इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मैं वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकता। आई कैन स्टार्ट द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज़ हार्डवेयर सिलेक्शन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज एंड दैट कैन बी स्टार्टेड। लेकिन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर देखोगे तो वहां पर मैंने डेटा माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि डेटा माइग्रेट करना नॉट डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सिलेक्शन। किया था ऐसे कुछ। और रिक्रूट स्टाफ का भी देखोगे वहां पे तो हम लोग वहां पे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टाफ को हम लोग को ट्रेनिंग देना है। लास्ट एंड पे हम लोग पूछेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कौन यूज करने वाला है, बताओ जरा हम लोग। तो जो यूजर बताएगा कि ये लोग दिस पीपल विल बी यूजिंग द सॉफ्टवेयर, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे वहां पे। किया था ऐसा कुछ? हाँ सर। So that is nothing but a critical chain concept or traditional planning approach. One problem with the estimates of task duration. Estimators add a safety zone to estimate to take account of possible difficulties. That means we always consider amount or time 10% extra only. अगर मुझे 100 दिन लगने वाले हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए तो उसको 100 दिन नहीं बोलूंगा, उसको 110 से 120 दिन बोलूंगा। 10 to 20% I'll be taking extra। अगर उसको 100 रुपया लगने वाला है तो उसको 100 रुपया नहीं बोलूंगा, उसको 110 से 120 रुपये बोलने वाला हूँ। दैट इज 10 to 20% एक्स्ट्रा ओनली। दैट इज टू मेक इट अ सेफ्टी जोन। सो डेवलपर वर्क्स टू एस्टिमेट प्लस सेफ्टी जोन, सो टाइम इज लॉस्ट। ऑब्वियसली टाइम लॉस होता ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको बोल दिया प्लस और माइनस 10%, प्लस माइनस भी होता है हमेशा प्लस ही होता है। तो अगर 10% बोलता हूं मैं डेज का भी 110 दिन में, एंड वो तुम्हारा काम 100 दिन में खत्म हो जाता है, तो देन 10 days you have to waste over there। दैट मींस वो मेरा जो सेफ्टी जोन था वो मैंने अपने सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन वहां पर कोई छोड़ के गया नहीं, कोई बीमार हुआ नहीं, किसी ने छुट्टी लिया नहीं। सब लोग 100 दिन तक कंटिन्यूस डेली टाइम पे आते गए, टाइम पे गए और काम पे टाइम पे काम होते गया। तो इसकी वजह से मेरा वो टाइम भी कंप्लीट हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी जोन माय टाइम इज लॉस्ट। नो एडवांटेज टेकन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर टास्क कैन फिनिश अर्ली एंड प्रोवाइड अ बफर फॉर लेटर एक्टिविटीज। दैट मींस वही बोला है, नो एडवांटेज इज टेकन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर टास्क कैन फिनिश अर्ली। जल्दी काम खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको हम जाके बोल देंगे, तो दे विल थिंक दैट कि टास्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड प्रॉपर्ली। मतलब अगर तुम्हारे घर को रेनोवेट करने के लिए अगर उसने बोला कि 110 दिन लगेगा, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हाँ चल भाई 110वें दिन पे मैं जाके देखूंगा बराबर किया है कि नहीं। लेकिन अगर 100 दिन में अगर उसने प्रॉपर्ली कंप्लीट करके दे दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे तो 10 दिन जल्दी बना दिया, बराबर बनाया कि नहीं बनाया तूने, ये देख सब गलती बनाया, ये गलती बनाया, वो गलती बनाया। हम लोग गलतियां दिखाना चालू कर देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वही सेम काम वो 110वें दिन पे दिखा देगा ना, बोलेंगे हाँ हाँ परफेक्टली किया है, सब बराबर किया हुआ है। तो मुझे 10 दिन जो है मेरे पास बचा हुआ, उसका मैं एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं ले सकता उसका। क्लियर एवरीवन विद दिस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, how to solve this then? Read.
Done. Yes, sir. Done. Suppose you are purchasing a product worth ₹100 and there are two final bills. There are two final bills. One is saying 100 amount only and one is saying 118 amount only. Which one will you prefer? एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का है, एक दुकान वाला बोलता है 100 रुपया, दूसरा वाला बोलता है 118 रुपया. So which one will you choose for? 100 or 118? 100. So why not 118 then? सर 118 ज्यादा हो जाएगा ना उसको देने के लिए. तो 118 क्यों है वो? उसके ऊपर जब एमआरपी पे 100 लिखा हुआ है 118 ले रहा है वो, तो क्यों? और दूसरा जो दुकान वाला वो 100 ही बोल रहा है, वो क्यों? सर 118 हो अपना पूरा बोलते हैं ट्रैवलिंग विलिंग जाके आने का वो सब ले रहा हो. कोई का दुकान वाला लेते हैं ना. ट्रैवलिंग नहीं, ये जो 100 था ना पहला वाला, ओनली 100 वाला, वो था मेरा इंक्लूडिंग जीएसटी. ओके. और जो दूसरा वाला जो था वो था मेरा एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो 18% जीएसटी है तो 100 रुपए के 18% वो हो गया 118. और ये जो दूसरा वाला 100 बोल रहा है वो बोल रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी. तो वो क्या था वो? तो अगर मैं वहां पे लिख दूं 118 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो पीपल विल बाय 118. वही यहाँ पर कहा गया है कि एडिशनल टाइम नीडेड टू हैव 95% चार्ज. मतलब तुम लोग वहां पे एडिशनल टाइम पकड़ के ही 100 दिन दिखा दो तो पीपल विल एक्सेप्ट इट. मतलब तुमने एडिशनल टाइम दिखाया, एडिशनल टाइम दिखा के तुमने 100 दिन बोल दिया, मतलब तुमको पता था कि 100 दिन में हो जाएगा और तुमने 100 दिन ही बोल दिया और उसी में हो भी गया. So then people will accept that yes, you have done it on right time. That is what one solution can be to this. 110 मत बोलो, 100 ही बोलो. तुमको पता है कि 90 डेज में हो जाएगा, तो 90 डेज का 10% करेंगे तो 9 हो जाता है, तो 99 हो जाता है. 90 मतलब 100 डेज. कंसिडर दैट. सो 100 डेज में होने वाले मुझे पता था, वो मतलब 95% चांस होने चाहिए वो तुम्हारे टाइम में कंप्लीट होना चाहिए करके था. तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टाइम जो गया है वो बहुत कम लॉस होगा उसका, वो बहुत कम डेज तुमको फिर एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा. हाँ ठीक है सर. That is what they say over here, critical chain approach. Clear with this? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Read. Most likely and comfort zone estimate. ये जो था हमारा एक्टिविटी यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H तक, उसका मोस्ट लाइकली और कंफर्ट जोन कितना है चेक करो यहाँ पे. मोस्ट लाइकली मेरा 6 दिन में होना चाहिए था, लेकिन मैंने 8 दिन बोल दिया, तो मेरा कंफर्ट जोन कितना हो गया? 2 दिन का. दिख रहा है यहाँ पे 2. मेरा 4 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 5 दिन बोल दिया बी टास्क के लिए, तो कितना हो गया? कंफर्ट जोन कितना बोला मैंने उसके लिए? 1. एक दिन. Similarly for all the tasks up to H. देख लो. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Identify the critical chain, that is the same critical path, but constant also taken into account. Resources are available or not. I have reduced to 100 days rather than 110 or 120. I have taken to 100 days, but I'll make sure that my all the resources are available with me for the next 100 days. That is also taken into account. Project buffer at the end of the critical chain with duration of 50% of some comfort zone sub activity on the critical chain. यहाँ पर मेरे 10 days होते हैं टोटल 10 days होते हैं, उसका 50% that is 5 days. 5 days का ही मैं कंफर्ट जोन पे चलूंगा मैं. तो ये मोस्ट लाइकली जो है इसके अंदर मैं ये 50% ऑफ कंफर्ट जोन का ऐड कर दूंगा और वो टोटल डेज में उनको बता दूंगा.
So that is what they say. Put a project buffer at the end of the critical chain with duration 50% of sum of comfort zones. तो मेरा कंफर्ट जोन का सपोज यहाँ पर आता है, ये सम 10 आता है, तो 10 का 50% 5 हो जाता है, और इसका आता है समझो मेरा 90 आ जाता है, तो 90 और 5 95 डेज, तो 95 डेज का मैं यहाँ पे उनको पूरा एस्टिमेट दे दूंगा डेज का, नंबर ऑफ डेज का, दैट इज क्रिटिकल चेन. Slide number 29. Remaining will continue next time. Responses. Once you're done with this, you can leave the meeting and get ready for next lecture. We'll meet next time. Everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.